नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में। फोटोग्राफ मॉडल अरे इसमें लगे congratulate first of all the Perfect Woman magazine for organizing such a prestigious event and making me part of this wonderful evening. I was always looking forward to come here because last year I missed Perfect Achievers Award where I was awarded as the Perfect Style Icon, and today I got that award and I'm absolutely grateful and thankful to Perfect Woman magazine, Gurubai Thakkar and Khushi Thakkar for having me on board. And tonight it is Perfect Mr. and Miss Teen awards happening. So it's even beautiful because newcomers and new talents and teenage students who want to come up in life, it's a huge opportunity for them to showcase their talent and participate in this wonderful contest. Because sometimes when we are young, we really don't know what to do out with our lives. So people who want to enter the entertainment field, the entertainment industry, it's a huge platform for them to participate, showcase their talent, and tonight it's the finale which is happening, and we're gonna be judging the grand finale round right now, because past few weeks the auditions were going on and people across the country, the teenage students, the teenage kids, they participated. So for me it's a new thing because for the first time I'll be judging teenage kids, and it's gonna be fun, entertainment, and I'm gonna enjoy lots of fun inside. I had done a song with Akshay Kumar, which was in Khatta Meetha, which was directed by Priyadarshi sir, and I did that song Aila Re Aila Ki Chamaila, and that was inspired by Bobby film Jhoot Bole Kaua Kaate. So I had done something similar to that. I was wearing a fisherwoman Koli Bari attire, and that was inspired by Dimple Ji, and it was a tribute to Dimple Ji which we did. When as a newcomer, as a beginner, we always hope that we reach somewhere in life. So when I was beginning my career, I was told that I'll be successful enough where one day I'm going to have a house of my own and I'm going to do well in my life. So whatever people were talking about, that it's a huge big break which I'm getting and it's going to be a big thing. So I think Akshay Kumar proved out to be very lucky for me, and so did Priyadarshi sir, and I think it was a huge opportunity for me as a beginner. I come from a small town called Saharanpur in UP, so coming from that city, I never thought that one day I'm going to work with Akshay Kumar or I'm going to reach this far. But then again, I'm grateful to all these people. Because of them, I am what I am today. Last night Miss India. Yeah. I couldn't watch it yesterday because I was attending another event last night. I had to launch an app called Geo Guru, where I am judging Geo Mr. and Miss Queen contest again. So King and Queen contest. So I was really busy last night, so I couldn't watch the contest because I was part of some other event last night. Finished a web series called The Birthday Gift, and it's a psychotic thriller, so I'm looking forward to that this year. Apart from that, I have just finished a comedy film called Kitty Party, which is a Punjabi film with Nab Bajwa who's directing it, and Jaswinder Bhalla, Gurpreet Kohli, Partner Singh, a lot of good cast is there. I'm looking forward to that this year, and apart from that, I'm already shooting for Khali Bali, which is a horror comedy, and it's a Hindi film. Madhu is there, Dharmendra Ji is there, Vijay Raj, good star cast, Rajneesh Dugal is there. So it's a horror comedy. For the first time I'm doing something like this because I've done a comedy. I've never thought of doing a horror comedy that soon. And it's being directed by Manoj Sharma, so I'm looking forward to that release this year. So back to that. I'm playing the role of Sanjana, and it's a psychotic
थी. So the entire खड़ी बली is revolving around Sanjana. सब कुछ उन्हीं उसी को solve करने में लगे हैं. And I was always a huge fan of horror genre. But then I never thought that horror with the comedy will do. So it's a situational stuff like you've seen Bhool Bhulaiya, we all have seen 3. So something like that, but I can't reveal the story exactly because that's something you're not supposed to talk about. राजपाल के साथ कैसा केमिस्ट्री? Rajpal is nice, all of them, Vijay Raj, Asrani ji, Dharmendra ji, Madhu, like after such a long time she's coming back, she's beautiful in Rosa. And I was a child when I saw Phool Aur Kaanche, and Rajneesh is great to work with all of them. I think the entire star cast, even the director Manoj sir is awesome to work with, so much to learn from everyone. Thank you so much. मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब उसने शुरुआत की थी शी वॉज जस्ट 8 years old और तब फुटबॉल का नामो निशान नहीं था लड़कियों के लिए अपने इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा जैसे उसकी इच्छा वो पैशनेट रही, बोली नहीं है तो मैं कहीं और जाके करूँगी फुटबॉल। और आज की डेट में फुटबॉल इंडिया में भी इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है फुटबॉल को, फुटबॉल भी ग्रोथ कर रहा है। तो बच्चों को उनके ड्रीम्स फॉलो करने दो, आप उनकी साइड में हो सकते हो, आप उन्हें गाइड कर सकते हो और उन्हें पुश दे सकते हो। लेट देम डू व्हाट दे वांट। तो जस्ट बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ, मेरी बेटी एक्ट्रेस बने ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं। आज के बारे में सिर्फ इतना ही है कि सब छोटे बच्चे हैं, 13 years to 17 years। इट्स परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया। इट्स अ पेजेंट फॉर टीनेजर्स जो अभी नए स्कूल से निकले हैं। दे डोंट इवन, इतना भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कहीं खुल के बात कर सके। बट वी हैव सीन हियर लास्ट ईयर के जो विनर्स आए थे एंड दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस इज व्हाट इज द अचीवमेंट। तो हम बेसिकली कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहेंगे, और ये जिसका इनिशिएटिव आ गया था, हमने अब आपके माध्यम से बहुत कुछ देखा है। जब हम परफेक्ट वुमेन की बात करते हैं, आपसे रिलेटेड जितने भी इवेंट आप सब आपने कराए हैं, अभी टीनेजर बच्चों को लेकर ना ये बहुत आगे हो गया। लास्ट ईयर भी हमने यही शो किया था एंड इट वाज सीजन 1। नाउ दिस इज सीजन 2। टीनेज के ऊपर कोई भी इवेंट्स नहीं होते, कोई भी शोज़ नहीं होते, ना उनको कोई प्रोत्साहन दिया जाता है। तो वी केम आउट विद एन आइडिया दैट लेट्स स्टार्ट विद टीनेजर्स। तो ये हमारा सेकेंड सीज़न है और बहुत सक्सेसफुल है। एंड कायनात जी इसमें जज बन के आई
महसूस हुआ नए टीनेजर्स को देख के? First of all, I want to thank Perfect Woman magazine for having me on board. Kushi Thakkar, Gurubai Thakkar, thank you so much for having me here. I missed Perfect Achievers Award some time back, and I got Style Icon Award, so I got that tonight. So I'm privileged and honored to be part of such a beautiful setup. This is my first time where I am part of something where teenage kids have participated in a contest, in a pageant, and I'm judging that as a jury. It's very easy to judge people, especially kids. It becomes more difficult, but then when you are on the platform where you're participating, it becomes really difficult. And these kids, they have participated from all over the country, so it's a huge platform for all the kids where they are participating, and they are showcasing their talent, and they want to reach somewhere in life. Sometimes we want to become big in life, but we don't get the platform. I think Perfect Teenage Mr. and Miss Teen contest is the perfect platform for all the kids where they can showcase their talents and decide what they want to do in life. I didn't get that opportunity as a child. These kids are getting the opportunity, and they are they have come up with a cause. They're talking about drugs. It has become such a big issue. तो उस cause को लेकर कितने अच्छे मुद्दों को ये लोग provoke कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. So they are associated with good cause. Yeah, teenage should get influenced with such things, and ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए. So Perfect Woman magazine has come up with this beautiful concept, और ऐसे beautiful programs आप करते रहिए हर साल, और ऐसे causes को मैं support करती रहूँ. तो I'm really really grateful and honored that I'm part of it. Thank you so much. ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया है ड्रग्स को लेकर, खास करके बच्चों में बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं, बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. क्या ध्यान में रखा है, और क्या जैसे आप कायनात ने बहुत कुछ बताया, क्या उसके इस पूरे शो के दौरान ब्रीफिंग भी की गई है क्या? जी, अभी आप एक एक्ट भी देखेंगे जिसमें हमने ड्रग्स को लेकर, ड्रग एब्यूज़ के लिए, से नो टू ड्रग्स पर एक हम लोगों ने कैंपेन के लिए एक्ट बनाया, विच इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग हियर, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि सबको पता चले. बिकॉज बच्चे आजकल छोटे टीनेजर्स आर यू कैन से दे गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी फास्ट. ज़्यादा करके पेरेंट्स को इतना वक्त नहीं दे पाते, और वो फ्रेंड्स के साथ में इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो बेसिक यही था कॉन्सेप्ट कि पेरेंट्स शुड बी क्लियर विद द किड्स. टीनेजर्स को टीनेजर्स ना समझ के, उनको दोस्त समझ के उनसे बात करें, ताकि उनकी जो मन में क्लैरिटी है वो किसी और से उसकी ओपिनियन लेने ना जाए. बिकॉज टीनेजर्स सबसे पहले इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं बिकॉज उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको गाइडलाइन देते हैं. And tonight what I'm seeing, even the kids, their parents have also participated on the ramp. This is for the first time where I'm seeing that the parents are also walking the ramp, and they are motivating their kids to do something good in life and say no to drugs, as we all are promoting. So Perfect Woman magazine has come up with this wonderful thing, and I'm absolutely honored that I'm also part of this whole concept. से नो टू ड्रग्स का मेन रीज़न ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके दोस्त लोग ही काफ़ी उनको बिगाड़ देते हैं. लाइक उनको गुमराह कर देते हैं, उनको इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं कि भाई तेरा तो कोई नहीं है ड्रग्स के सिवाय, यू टेक ड्रग्स. तो वहाँ से जो ड्रग्स की शुरुआत होती है तो फिर खात्मा कहीं नहीं होता. तो वी ट्राई टू पुट दैट एज एन एक्ट कि लोगों को पता चले कि दिस इज़ रियली नॉट गुड, इट्स बैड. ये जो टीन एज है, ये ऐसी एज है जहाँ बच्चों को लगता है दे आर ऑलवेज राइट, उनके पेरेंट्स गलत ही हैं. बिकॉज अगर उनको पेरेंट्स कुछ उनको डांटेंगे तो फॉर देम इट इज लाइक देन द फ्रेंड्स विल इन्फ्लुएंस. तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांटे. तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया जहाँ पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बॉन्डिंग है, उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि उनको सबको पता चले. थैंक यू. परफेक्ट मिस्टर एंड मिस टीन के प्रोग्राम में, इस इवेंट में गुरुबाई ठक्कर जी और खुशी जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है. मैं इनको कुडोस देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं. दे वेरी सिंपल पीपल. आई कैन सी कि इनका दिल बहुत ही बच्चों को लेकर और उनके इश्यूज़ को लेकर बहुत ही इमोशनल है, एंड दे आर वेरी दिस अबाउट इट. आपने कहा कि ड्रग्स के ऊपर आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है. एक समय था बीच में जब बहुत ठंडा हो गया था, फिर से मामला उठ रहा है, एंड ड्रग्स बिकम सो प्रिवलेंट. मेरे घर के नीचे एक गली है, एंड इट्स लाइक यू कैन इमेजिन हाई फाई प्लेस लाइक लोखंडवाला एंड वहाँ पर ये चीज़ें चलती है. और बच्चों को, मेरी डॉटर ने मुझे खुद कहा कि उसने वन ऑफ द फ्रेंड्स को देखा कि ही वॉज
वाज टेकिंग एंड ही आस्क्ड हर कि तुम ट्राई करना चाहती हो, और मेरी डॉटर को मैंने बचपन से ही बहुत इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई हैव थॉट हर, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग दी है, सो शी सेड नो। बट कितने बच्चे ऐसा कह पाते हैं और कर पाते हैं, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ों पर अवेयरनेस लेकर आए और इन चीज़ों को रोक सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इससे अफेक्ट ना हो और हमारे बच्चे उनकी लाइफ बर्बाद ना हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं इनके साथ हूँ इस चीज़ में, एंड आई रियली विश कि आप लोग ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत सक्सेसफुल हो, ये इंडिया के कोने कोने तक जाए और इस चीज़ पर ज़रूर रोक आनी चाहिए और जल्द से जल्द आनी चाहिए। दैट इज द मदर डॉटर पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। बट गुरु भाई जी इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि फैमिली जहाँ पर बच्चों को कोई तकलीफ भी नहीं है, अच्छे हंसती खेलती फैमिलीज में भी ये चीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और गलत संगत का असर होता है। तो हमें एक्चुअली अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे खुश हैं और नॉर्मल हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है उनके साथ। और ये भी है कि टेक्नोलॉजी ने भी उनको बहुत सब चीज़ों से बहुत दूर कर रखा हुआ है। ये एक्टिविटीज़ एक तरीके का एक मीडियम है जहाँ हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सके। अदरवाइज यू विल सी ऑल द टीनेजर्स इन द मोबाइल डूइंग व्हाट्सएप। आई थिंक ड्रग से बढ़कर अगर कोई खतरनाक चीज़ है वो है मोबाइल। वेरी ट्रू। तो बिगेस्ट एडिक्शन राइट नाउ हम सबके लिए है। हाँ, बिगेस्ट है। और इस शो के जरिए परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया के जरिए हम उन बच्चों को थोड़े एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ दे आर फिजिकली डूइंग सम एक्टिविटीज, देयर टैलेंट हैज बीन शोकेस्ड, दे आर वर्किंग ऑन देयर टैलेंट, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज देयर ओल्ड स्किल्स। तो ये एक तरीके का और खुशी जी, आई एम अ मदर ऑफ अ 16-year-old और मैं ये जानती हूँ कि इन लोग के लिए इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है इस एज में 13, 15, 16 में उनको बढ़ावा देना, उत्साहित करना और उनके व्हाट यू कॉल सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ाना, बिकॉज सेल्फ स्टीम इज़ अ वेरी बिग इशू विद टीनेजर्स। अगर उनको आप नहीं उनका बढ़ावा दोगे उनके सेल्फ स्टीम को तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद टीनेजर्स। तो टीनेजर्स नाउ these days डिप्रेशन इज द बिगेस्ट थिंग जो टीनेजर्स को बहुत जल्दी, बिकॉज पेरेंट्स भी उनके साथ इतने कनेक्टेड नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टेक्नोलॉजी के में फिर हम डांटते हैं तो डांट की वजह से दे फील लाइक माय पेरेंट्स आर अननेसेसरली गेटिंग ऑब्सेस्ड अबाउट दैट। So she's a brand ambassador for this Perfect Woman Private Limited. So I guess she's the perfect choice, and she's a lovely person in person. मैं जब से मिली हूँ, she has ये बहुत अच्छी है। infectious smile she has. मैं थोड़े दिन पहले इनसे मिली थी, हम घर पे गए थे इनके, बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके। हमने बहुत मस्ती की थी, बहुत बातें की थी, गाने की बातें की थी, एंड आज हम फिर मिल गए। इनको पता ही नहीं मैं भी यहाँ पे हूँ, तो ये खुश हो गए, जाने वाले थे। सच बहुत अच्छा, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इवेंट पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, काफ़ी तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं। कोई मम्मी के साथ आया, कोई पापा के साथ आया, कोई बहन के साथ आया, एंड कई लोग तो मम्मियाँ लग भी नहीं रहे, सिस्टर्स लग रहे हैं। सो दैट इज़ अ न्यू थिंग। बहुत मतलब बच्चे आए और बहुत अच्छा कर रहे, सब अलग अलग टैलेंट दिखा रहे हैं अपना, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके एंड सबके टैलेंट देख के। So what's your take on this? This is something absolutely a very good, noble initiative. It's about drugs, making the teenagers to get involved. What would you say about this? It's very good initiative because you are guiding some people who are क्या कहना चाहिए कि वो भटक गए अपने पाथ से, so you are just getting them on the correct lane first of all, and secondly you are giving a target to people to live on. क्या होता है, हम भटकते तब है जब हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता लाइफ में। So I think this perfect is giving them a perfect target to chase on. So that is really good. बड़े कम होते हैं। डॉक्टर की बात करें, गुरु भाई की बात करें, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट, एंड मतलब वी शुड इनकरेज देम मोर, और इनकी तरीके के और भी लोगों को इनकरेज ज़्यादा करना चाहिए हमारी सोसाइटी को, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल काम है। नॉट बिकॉज कि ये काम मुश्किल है, बिकॉज किसी को भी समय देना सबसे ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में, व्हाट आई फील पर्सनली। और वो इस काम को इतनी डेडिकेशन के साथ इतना अच्छे से अपना समय अपना वक्त दे रहे हैं। हम तो आज के लिए आए, बट पता नहीं कितने महीनों की ये या कितने सालों की ये मेहनत होगी जो वो पुटअप कर रहे हैं। सो दैट इज़ रियली 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 thumbs up to them, and my best wishes always. Okay, your confirmation, is there a possibility that you will be working as an actor? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? यार इट्स रियली टफ, रियली नहीं, अगर हमें खुद पे भरोसा कि हम कर सकते हैं तो आप भी आपको है ना। मुझे पहले लगता था
डिफ़िकल्ट जॉब, और सच में कि हवा में आपको सुर पकड़ के और लगाने पड़ते हैं, दैट इज़ टफ वन। बट उससे भी ज़्यादा फिर मुझे लगता था कि साधु लोगों की तपस्या बहुत ज़्यादा टफ है, बट आई थिंक एक्टिंग इज़ द टफेस्ट जॉब। आपको अच्छा दिखना होता है, अच्छा रहना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, एंड आफ्टर ऑल दैट इतनी मेहनत के बाद कैमरे के आगे आपको एक्सप्रेस करना होता है कोई चीज़, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं आई एम लाइक माई ओन जोन। सिखा दूंगी आपको। बिग बॉस आने वाला है, यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद सलमान। इज देयर पॉसिबिलिटी विल आस्क यू टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस? विल यू बी इंटरेस्टेड? नहीं, बहुत टफ है यार, उतना कैमरा से इतना ही फेस कर लेती हूँ मैं, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है इतने सालों में, बट इट्स रियली टफ फॉर मी टू फेस इट, बट आई एंजॉय दैट। येस, आई डू एंजॉय दैट, एंड बिकॉज ऑफ सलमान सर आई एंजॉय इट मोर। वो इतना मज़ेदार बना देते हैं बिग बॉस को यार, वो बहुत मज़ेदार बनाते हैं। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, मुझे 11 ईयर्स हो गए काम करते हुए इस इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करके, इतने टाइम से इतने सारे लोग मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड गीत मैम एंड खुशी मैम बहुत ही अच्छे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और बच्चों के लिए जो इतने टैलेंटेड हैं उनके लिए फैशन शो में जो परफेक्ट मिस इंडिया है उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो बाकियों के लिए, इतनी हेल्प कर रहे हो सबकी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। या She is a celebrity. बहुत प्राउड महसूस करती हूँ अपनी मम्मा पे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्राउड महसूस करती हूँ, बिकॉज उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, एंड उनकी वजह से आज यहाँ हूँ, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड खुशी मैम को, एंड गुरु सर को, एंड गीत मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी। ये पहले से ही बहुत दिल के करीब रही है हमारे, बिकॉज शी इज बीन अ पार्ट ऑफ द परफेक्ट वुमन कंपनी फॉर पास्ट 2 to 3 years, एंड दिस टाइम इट हैपेंड सो दैट दिस स्टार वाज रेडी एंड अवेलेबल फॉर बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर। उनके पेरेंट्स से बात की, मम्मा से बात की, एंड दे वर लाइक प्रिविलेज, दे हैव टेकन द प्रिविलेज केयर ऑफ अस, एंड दे आर हियर टुडे। Is there possibility on a very positive note? I won't you take it on a positive note. You will see somebody along with the female from the Bollywood becoming a brand ambassador of your company. Yes, of course, that is for sure, because teenagers थे, the pageant is all about teens, तो teens के लिए targeted, और वैसे भी they get influenced, जैसे कि हमने कहा, इनके followers ही वही है, सभी teens, इनका नाम आने के बाद we are getting messages, is she going to come, is she going to click pictures with us, because बच्चे आजकल influence teens से होते हैं, तो she can be a role model for those teenagers who are a part of the organization, उसके अलावा भी जो इनको follow up कर रहे हैं और जो आजकल पूरी रात में चल रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए एक बड़ी बहुत रोल मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। तेज़ रफ्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों में।